गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम नया चैप्टर लेके आए हैं इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल, जो कि 12th स्टैंडर्ड में 9 to 10 नंबर्स कैरी करता है। तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर के कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के लीजिएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझ के लेते हैं कि कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। ये हम एक डेफिनेशन समझ के लेंगे। जैसे कि कंपनी क्या करती है, जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी दे आर रेजिंग देयर कैपिटल थ्रू द वे ऑफ इशूइंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा. So this is also one of the source of funds of company. Through the way of issue of shares, company can raise their capital and they can expand their business, they can grow their business. So let's start with the issue of shares capital. First of all, we'll understand what is the meaning of shares at the companies. So company, as you know, company is an artificial person which is created by the law, having separate legal entity with perpetual succession and a common seal. That is called as company. तो दोस्तों ये हमने 11th स्टैंडर्ड में कंपनी की कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखी है। कंपनी क्या होती है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is created either made by the law. It's having a separate legal entity, as well as there is a perpetual succession and a common seal also. I'm giving here some characteristics of a company. After the study of characteristics of company, we will see how it will calculate and how it will be journalized in the journal form one by one. Now, what is the meaning of incorporation? सी हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है, कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, कंपनी रन करते हैं। तो ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज इश्यूड बाय आरओसी। आरओसी इसका मतलब क्या होता है? रजिस्टर ऑफ कंपनी। दिस सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द आरओसी as per the given guidelines of Companies Act 2013. This is called as Companies Amendment Act. The law consider a company is an artificial legal person. कंपनी क्या कहलाएगी यहाँ पे? आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगी यहाँ पे. For the company, it's having a separate legal entity from its owner as well as shareholders. Shareholders are called as owners of the company, but they are not fully owner of the company. They are called as part owner of the company. So what is the meaning of perpetual existence? This is the another characteristics of company. A company has perpetual existence not affected by the death, lunacy, insolvency of its shareholders. इसका मतलब ये होता है, अगर कोई शेयर की डेथ होती है, इंसॉल्वेंट होता है, या तो फिर वो अनसाउंड होता है, इसका किसी भी प्रकार से इस कंपनी के ऊपर उसका नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दिस इज द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी. And then what is the meaning of common seal? The company has a separate their own common seal which act as the official signature of the company. उस common seals के ऊपर क्या होता है? कंपनी का सिग्नेचर होता है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर ट्रांसफरेबल. कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं. एनी वन पर्सन कैन इजीली ट्रांसफर टू अनदर पर्सन. Now, next characteristics of the company, the liability of shareholder is limited to the unpaid value of his shares. For example, if the face value of the shares in company is rupees 10 rupees and shareholder has already paid rupees 8, he can be called up to pay not more than rupees 2 rupees. इसका मतलब ये होता है एक शेयर का कीमत है यहाँ पे 10 रुपए और उस शेयर होल्डर ने 8 रुपए ऑलरेडी पेड कर चुके होते हैं. कंपनी इस शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए कॉल कर सकती है, उसके ऊपर कंपनी कॉल नहीं कर सकती वहां पे. इसका मतलब उसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी अभी वहां पे? ओनली 2 रुपीज. नाउ सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप. shareholders are the true owners of the company, but usually the number of shareholders is quite large, and as such it is neither possible nor desirable for
member to take part in a day-to-day management of the company. It's a shareholder basically called as owner of the company, but few shareholders are quite large. So in this case, they can manage with the company management, with passing up a resolution, with the shareholders consent, etc. Now let's start with the distinguish of private and public company. Basically, in the private company, there are minimum two numbers are members and maximum two members are there. A public company, minimum members are there, 7, and maximum, there is no limit for the maximum number of members. Now, invitation to the public, under the private company, it cannot invite the public to subscribe to its shares. प्राइवेट कंपनी में कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, बट in the other case public company, it can invite the public to subscribe to the shares. इस केस में पब्लिक कंपनी का लिमिटेड इस शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर सकती है. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, there is a restrictions on the transfer of shares under the private limited company. Now public company, there is no restrictions on the transfer of its shares. This is the basic distinction between the private and public company limited. Now basically there are two types of shares, preference shares and equity shares. The shares which are preferential right in respect of right of dividend, repayment of capital on binding of the company. जिस shareholders को preferential rights होता है to get the benefit and to get the priority first of all in the case of right of dividend, either repayment of capital on the binding of the company. Now let's start with the equity shares. The shares which are not preference shares are called as equity shares. जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर्स कहते हैं. कुछ ऐसे टर्म्स हैं इस शेयर कैपिटल में यूज किए जाते हैं, उससे हम अभी स्टार्ट करेंगे. प्रोस्पेक्टस, इट इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. मतलब कोई भी कंपनी शेयर कैपिटल रेज करने से पहले या तो शेयर कैपिटल डिमांड करने से पहले कंपनी क्या करती है, इन्विटेशन प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है पब्लिक में for the purpose of subscription purpose. Capital, in case of company, money is contributed by the capital public and people who contributed money are called shareholders. मतलब जो पब्लिक होती है वो कंपनी की कैपिटल में कंट्रीब्यूशन अपना देती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं. शेयर कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी एज वेल एज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. मतलब ये कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट शो करता है एंड इट इज स्टेटेड इन द एमओए, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मतलब कंपनी इस कैपिटल से ज्यादा किसी भी टाइप्स के शेयर्स इशू नहीं कर सकती है. इशूड कैपिटल, this is a part of authorized capital which is offered to public for subscription. It cannot exceed authorized capital. Issued capital ये भी किसका पार्ट होता है, authorized capital का होता है. और issued capital it cannot be exceed than authorized capital. It is offered to the public for subscription purposes only. Called up capital, it is the amount of nominal value of shares that has been called up by the company for the payment by the subscriber towards the शेयर्स. मतलब जो कंपनी सब्सक्राइब करने के लिए या तो फिर कंपनी जो शेयर्स कॉल्ड करती है, इसके बदले में जो अमाउंट मिलती है उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल. सॉरी, नाउ पेड अप कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट द मेंबर ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर्स हैव पेड. जो मेंबर लोगों ने अमाउंट पेड की होती है उसको क्या बोलते हैं, पेड ऑफ कैपिटल बोलते हैं. रिजर्व कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल. रिजर्व कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल भी बोलते हैं. ये जो अनकॉल्ड कैपिटल होता है इट विल बी ट्रांसफर टू द रिजर्व कैपिटल अकाउंट. कैपिटल रिजर्व, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. ये इस टाइप का प्रॉफिट होता है विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ dividend to the shareholders.
स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रॉब्लम दिया है। इस प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको जो डाउट्स रहेंगे या तो क्वेरीज रहेंगे सब आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ। जैसे कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है सर, ऑफर्ड कैपिटल क्या होता है, ये सब मैंने यहाँ पे डायग्राम के जरिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके दिया। बट उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम कैसा होता है यहाँ पे। कंपनी हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ₹5 लाख, आउट ऑफ विच 4 लाख ऑफर्ड टू द सब्सक्रिप्शन। कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना है? 5 लाख। बट फिलहाल के लिए कंपनी को 4 लाख की जरूरत है, तो उसने कंपनी ने क्या कर दिया, पब्लिक के लिए 4 लाख से जो रिक्वायरमेंट है वो ऑफर कर दी। एंड आउट ऑफ 4 लाख पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड ओनली ₹2,50,000। मतलब 4 लाख तो कंपनी ने ऑफर किए थे, आउट ऑफ दैट 4 लाख रुपीज company publish subscribed rupees only 2,50,000. So what about the 1,50,000? That is called as unsubscribed capital. The company called up rupees 2 lakh from its subscriber. The shareholders is paid only 1,74,000. Let's see with the diagram. See दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो कैपिटल है यहाँ पे कंपनी का कैपिटल है 1,05,000, सॉरी ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी का यहाँ पे 5,000। आउट ऑफ 5 lakhs कंपनी इश्यूड 4 लाख रुपीज फॉर द पब्लिक। कंपनी ने इश्यूड कितना किया है यहाँ पे? 4 लाख किया है। इसका मतलब 5 लाख उसका मैक्सिमम कैपिटल है और 4 लाख की कंपनी को जरूरत है, इसलिए कंपनी ने क्या कर दी, अभी इश्यूड कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए फॉर द पब्लिक। अब 1 लाख बचते हैं इसमें, ये जो 1 लाख जो बचे हैं उसको हम बोलेंगे अनइश्यूड कैपिटल, जो कि कंपनी ने इश्यूड नहीं किए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज सब्सक्राइब्ड सब। और ये जो हमने कैपिटल इश्यूड किए थे 4 लाख, उसमें से कंपनी ने पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए यहाँ पे? 2,50,000। और जो 1,50,000 बचे हैं इसको हम बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो 2,50,000 ये सब्सक्राइब किए थे यहाँ पे, उसमें से कॉल्ड अप कितने किए कंपनी ने यहाँ पे? 2 लाख ओनली। व्हाट अबाउट 50,000? 2,50,000 तो सब्सक्राइब किए थे पब्लिक ने, तो उसमें से कॉल्ड अप कितने कंपनी ने? 2 लाख रुपीज। जो बचे हैं 50,000 वो कंपनी ने अनकॉल किए हैं, मतलब कंपनी ने इतने रुपए नहीं मंगा है। तो ये जो 50,000 रहेंगे आपके, इसको क्या कहेंगे हम? अनकॉल्ड कहेंगे यहाँ पे। कॉल्ड अप तो कंपनी ने किए थे 2 लाख, बट उसमें से शेयर होल्डर्स ने कितने पेड किए हैं यहाँ पे? एक्चुअली देखा जाए तो 1,75,000 ही पेड किए हैं। तो इसका मतलब जो 25,000 है ये अभी भी क्या है? कॉल्स इन एरियर्स। मतलब कंपनी ने तो कॉल किए थे 2 लाख रुपीज, बट शेयर होल्डर्स ने पेड किए हैं 1,75,000 रुपीज, बट जो बैलेंस है दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। अभी हम बात करते हैं ये जो 50,000 जो अनकॉल्ड कैपिटल है ये कहाँ पे ट्रांसफर करती है कंपनी? रिजर्व कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करती है। सो दोस्तों ये था आपका थीम कि जो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको यहाँ पे। आई होप कि आपको इसको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत होता है दोस्तों तो इसको आप फिर से रिपीट करके इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ताकि आपको फिर से इसमें समझ में आ जाएगा। हाँ, इन दैट केस अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क मी सर मुझे ये पार्ट नहीं समझ में आया है, तो क्या आप इसका दोबारा वीडियो बनाएंगे? तो दोस्तों आपको फिर से मैं दूसरा वीडियो बना के वो शेयर करूंगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार मतलब क्या होता है, एट प्रीमियम मतलब क्या होता है, और एट डिस्काउंट मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे शेयर्स आर इश्यूड एट पार व्हेन दे आर इश्यूड एट अ प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू। जब कंपनी शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है उसी फेस वैल्यू के साथ शेयर्स इश्यू करती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। आई रिपीट इट अगेन दोस्तों, कंपनी जब अपने शेयर्स फेस वैल्यू के साथ ही इश्यू करते हैं उसको बोलते हैं हम इश्यू ऑफ शेयर्स बोलते हैं, एट पार बोलते हैं ना। हम बात करते हैं यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ये प्रीमियम मतलब क्या होता है? जब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा चार्जेस लेती है शेयर होल्डर की तरफ से, या तो फिर
फेस वैल्यू से ज्यादा एक्स्ट्रा रुपीज कॉल करती है तो उसको बोलते हैं हम प्रीमियम। लेट्स सी, शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम टू द पब्लिक बाय मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज थ्रू द आईपीओ। नाउ एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम का एक एग्जांपल बताना चाहूंगा दोस्तों। मान लो कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो कंपनी ने इशू किया मार्केट में 12 रुपए से एक शेयर इशू किया, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 रुपए जो है वो कंपनी ने प्रीमियम चार्ज कर दी, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। दोस्तों अभी डिस्काउंट क्या होता है मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में कवर नहीं किया है, बट स्लाइड एक्सप्लेन यू। डिस्काउंट मतलब क्या होता है दोस्तों, कंपनी शेयर्स अपने इश्यू करती है शेयर होल्डर्स को विद डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस मतलब ये होता है फेस वैल्यू से कम प्राइस में इश्यू कर देना, दैट इज कॉल्ड एज इश्यू ऑफ शेयर्स विद द डिस्काउंट। अभी कभी कभी क्या होता है, कंपनी क्या करती है यहाँ पे, शेयर्स इश्यू करती है अदर देन कैश। तो यहाँ पे कंपनी के जो जर्नल एंट्रीज करते हैं, कंपनी की बुक्स में जो जर्नल एंट्रीज होती है यहाँ पे, assets account debit to vendor, vendor to shares and vendor to share capital and securities premium। इस केस में क्या होता है, कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए हैं अदर देन कैश, मतलब कंपनी ने यहाँ पे कैश नहीं लिए है, किसी के पास से असेट्स लिए हैं और उसको असेट्स पैसे के बदले में क्या किया है, उनको शेयर्स इश्यू किए हैं। तो ये है अलग केस है यहाँ पे। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, समटाइम्स बाय चांस द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज द सेम द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड किया है इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर किए हैं उतने ही एप्लीकेशन जाना, इसका मतलब होता है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। अभी अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर लेस देन द शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने 10,000 के शेयर्स इश्यू किए थे, बट कंपनी को शेयर होल्डर्स ने खाली 8,000 के लिए ही अप्लाई कर दिया। इसका मतलब 2,000 कम इश्यू कर 2,000 रुपए के शेयर्स इश्यू नहीं हो चुके, इसका मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे शेयर्स आर इश्यूड टू द पब्लिक बाय वेल मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज थ्रू द आईपीओ। जब कंपनी 10,000 के शेयर्स इश्यू करती है, बट पब्लिक के पास से पब्लिक के जरिए 15,000 एप्लीकेशन आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। बट ये किस सिचुएशन में होता है, किस केस में होता है, जब कंपनी का रेपुटेशन, जब कंपनी का गुडविल बहुत ही अच्छा होता है, उसी केसेस में ये ओवर एप्लीकेशन के केसेस हमें यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इसमें 3 केसेस है, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, 3 केसेस में इसको सॉर्ट आउट कर देती है या तो फिर सेटलमेंट करती है। 3 alternatives are available to the directors in this situation। फर्स्ट अल्टरनेटिव, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 10,000 के जो शेयर्स इश्यू किए थे, 15,000 एप्लीकेशन आए थे, तो कंपनी क्या करेगी, 5,000 जो शेयर्स है दे आर रिजेक्टिंग डायरेक्टली एंड रिफंड टू द शेयर होल्डर्स। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, यहाँ पे दे कैन डिस्ट्रीब्यूट that amount and the shares among the shareholders on the basis of pro rata allotment. Third process is full allotment to some applicant। अब इसकी कुछ जनरलिटीज है दोस्तों, यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ अल्टरनेटिव 1 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। इसका मतलब क्या है, जो एक्सिस मनी जो थे यहाँ पे कंपनी ने रिफंड कर दिए हैं, ड्यू टू एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एक्सिस मनी ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज रिफंडेड। तो यहाँ पे जो एक्सिस मनी थी ये कंपनी ने क्या कर दी, रिफंड कर दी यहाँ पे। या तो सेकंड केस जो हमने देखा था, उस ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो ये सेकंड सिचुएशन में एंट्री बन जाती है यहाँ पे। और थर्ड अल्टरनेटिव जो था अपना यहाँ पे, उसमें ये एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस एंड बैंक अकाउंट। बेसिकली 3 अल्टरनेटिव्स यूज करती है कंपनी जब ओवर सब्सक्रिप्शन की केस आ जाती है तब।
अब हम बात करेंगे दोस्तों फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? व्हेन शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे द कॉल्ड अप मनी ऑन अलॉटमेंट एंड फर्दर कॉल्स। In this case, company can forfeit their shares. मतलब shares can be cancelled. The amount already paid may be forfeited. Forfeited का मतलब होता है cancellation of membership. Either जो उन्होंने amount paid की है उसको जब्त कर देना. The name of the shareholder is removed from the register of members after the forfeiture of shares. Amount already received on these shares forfeited by the company. जितने शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हुए हैं वो अमाउंट कंपनी को ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुकी होती है. तो फॉरफिटेड अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द न्यूली ओपन्ड शेयर फॉरफिचर अकाउंट. दैट अमाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट एज द रिजर्व फंड अकाउंट. It will be transferred to the separate account. That account is called as share forfeiture account. Now shareholder failed to pay the called up money on allotment and further calls. Shares can be cancelled and amount already paid may be forfeited. जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है तब उस टाइम में कंपनी की एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मतलब इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे कंपनी ने अमाउंट रिसीव्ड किए हैं पार के हिसाब से तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड है. बट शेयर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट. अभी यहाँ पे देखो ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया है और फर्दर कॉल्स पे अमाउंट नहीं दिया है. बट जो कुछ भी दिया है यहाँ पे हम शेयर फॉरफिचर में लिखेंगे. व्हेन शेयर्स आर इशूड ओरिजिनल मतलब प्रीमियम के साथ अगर हम फॉरफिट करते हैं तब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट. दोस्तों ये जर्नल आप खाली याद रखना है. जब मैं नेक्स्ट वीडियो आ जाऊंगा तब आपको एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये आपको सब एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन का हो जाएगा. रीइश्यूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. जब हम या तो फिर कंपनी जब शेयर्स फॉरफिट करती है तब रीइश्यू करती है तो उसका एंट्री होता है बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अगर मान लो रीइश्यू करते समय भी कंपनी ने उनके जो शेयर्स है प्रीमियम के साथ अगर रीइश्यू करती है तो कंपनी के लिए क्या बन जाता है वहां पे गेन बन जाता है, इनकम बन जाता है. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे कंपनी ने रीइश्यू किया है मतलब फेस वैल्यू था उसका 10 रुपए. कंपनी ने रीइश्यू किया है 8 रुपए के साथ तो 8 रुपए और प्रीमियम उन्होंने चार्ज किया 2 रुपए. इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट 8 रुपीज लेंगे वहां पे और सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपीज लेंगे हम वहां पे. Reissue of forfeited shares, transfer the balance of share forfeited account. Entry will be share forfeited account debit to capital reserve account. सो दोस्तों ये इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर था हमारे यहाँ पे. कुछ हमने इसमें गारंटीज देखे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे हैं. सबसे आसान तरीका था इसमें मतलब गारंटीज कैसे करने हैं क्या करने हैं. दोस्तों आपको इसमें खाली 8 एंट्रीज याद रखने हैं जो कि बहुत आसान है. अभी वो 8 एंट्रीज कौन से हैं मैं आपको फिर से शो करूंगा यहाँ पे. देखिए दोस्तों सबसे पहले ये एंट्री याद रखना है आपको. यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स. ये पहला एंट्री कंपलसरी याद रखना है. ये जो हम मनी रिसीव्ड करते हैं इट विल बी ट्रांसफर टू द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट. सो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये पहला एंट्री हो गया दोस्तों. अब अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. दोस्तों आपको इसमें कॉमन चीज सेम दिखाई देगी. ये ड्यू की एंट्री और पेमेंट की एंट्री रिसीव्ड की एंट्री सब सेम ही रखेंगे वहां पे. अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे क्या था दोस्तों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल का.
यहाँ पे अलॉटमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल है। ये कॉमन चीज देखने को मिली आपको यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर अलॉटमेंट था यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अभी नेक्स्ट एंट्री रहेगा दोस्तों यहाँ पे on third and final call account debit तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो एंड ये पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। दोस्तों ये सिंपल एंट्री आपको 8 या 10 एंट्री याद रखने हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि चल के मैं आपको जो नए नए लेक्चर्स की वीडियोस है आपके जरिए आपके यहाँ तक मैं आपको पहुँचा सकूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज में प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिएगा, घर पे ही रहेगा, क्योंकि जो अभी जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के बहुत नाजुक है, इसलिए दोस्तों मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, सी यू अगेन।